السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور میسنجر کی سروسز کئی گھنٹوں تک معطل رہی۔ میسیجنگ ایپس نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں کئی گھنٹوں تک کام کرنا بند کر دیا تھا۔ تاہم کمپنی نے فوری طور پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسے ٹھیک کرنے میں مصروف ہیں اور اسے جلد ٹھیک کر دیا جائے گا۔ 3 اہم ایپس نے آج صبح یعنی منگل کی صبح تقریباً 4 بجے ہندوستان میں دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا۔ جب تک ایپس بند رہے، صارفین بہت پریشان تھے۔ ہندوستان میں ان ایپس نے کل رات 9 بجے کے قریب کام کرنا بند کر دیا تھا، جہاں لوگ واٹس ایپ پر پیغامات بھیجنے سے قاصر تھے۔ انسٹاگرام پر کوئی نئی پوسٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ صارفین فیس بک پر بھی پوسٹ کرنے سے قاصر تھے۔ فیس بک اور اس کے شراکت دار ایپس کے بند ہونے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ ہندوستان میں آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ منگل یعنی آج 5 اکتوبر 2021 کو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ آج کے اضافے کے بعد دارالحکومت دہلی میں پیٹرول 25 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 30 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے۔ آج کے اضافے کے بعد دہلی میں پیٹرول 103 روپے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس وقت ڈیزل بھی آج یہاں 91 روپے فی لیٹر سے اوپر پہنچ گیا ہے۔ ڈیزل پہلے ہی ممبئی میں 98 روپے سے زیادہ فروخت ہو رہا ہے، جبکہ پیٹرول 108 روپے 43 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ وہیں حیدرآباد میں پیٹرول 106 روپے 51 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے اور ڈیزل 99 روپے 4 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی اونچی قیمتوں کی وجہ سے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ AIUDF سربراہ اور لوک سبھا MP بدرالدین اجمل نے آج صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے اپیل کی ہے کہ وہ آسام کے ضلع درانگ کے علاقے ڈھولپور میں بے دخلی کی کارروائی کو فوری رکوائیں، جس کے بعد گزشتہ ماہ کسانوں اور پولیس کے درمیان خونریز تصادم ہوا ہے اور 2 افراد کی موت واقع ہوئی ہے، جس میں ایک 12 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ اس بارے میں اظہار تشویش کرتے ہوئے کہ بے دخلی کی مہم سے آسام میں سماجی عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے، بدرالدین اجمل نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے نام یادداشت میں یہ بھی خواہش کی کہ پہلے ہی سے بے دخل کردہ افراد کی بازآباد کاری کی جائے اور 23 سپٹمبر کو بے دخلی کی مہم کے بعد تشدد پھوٹ پڑنے کے بعد پولیس فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کے ورثاء اور زخمیوں کو معاوضہ ادا کیا جائے۔ کئی دوسری سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی، جن میں کانگریس اور CPIM بھی شامل ہیں، اس سے پہلے یہ درخواست کی گئی تھی کہ بے دخلی کی مہم کو روک دیا جائے۔ اجمل نے، جنہوں نے بے دخلی کو غیر انسانی قرار دیا، یہ بھی اپیل کی کہ دریائے برہما پترا کے راستے میں تبدیلی کے باعث اراضیات سے محروم ہو جانے والوں کو اندرونی طور پر بے گھر فرد کا صداقت نامہ جاری کیا جائے اور فائرنگ کے واقعے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کرائی جائے۔ RSS لیڈر اندریش کمار نے اتر پردیش کے علاقے لکھیم پور میں تشدد کی، جس میں 8 افراد ہلاک ہو گئے، مذمت کی اور عوام سے اپیل کی کہ وہ امن برقرار رکھیں اور کہا کہ ملک کو سلامتی و اتحاد کے مختلف خطرات کا سامنا ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر اور لداخ کے عوام سے بھی یہ خواہش کی کہ وہ عہد کریں اور مطالبہ کریں کہ چین و پاکستان غیر قانونی طور پر قبضے کیے جانے والے ہندوستانی علاقوں سے تخلیہ کر دیں اور ان کی اقلیتوں پر مظالم کو روک دیں۔ RSS لیڈر نے جموں میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ لکھیم پور کھیڑی میں تشدد کی تحقیقات کرائی جانی چاہیے اور قاتلوں کو سزا دی جانی چاہیے۔ ہم ملک کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی احتجاج کو پرتشدد رخ اختیار کرنے سے روکیں، کیونکہ مذاکرات کو خاص اہمیت حاصل ہے تاکہ ترقی کا سلسلہ جاری رہے اور ہمارا ملک ایک محفوظ و مضبوط ملک رہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے لکھیم پور کھیڑی اتر پردیش میں ہوئے پرتشدد واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ وہاں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کسانوں کے تئیں سرکار کے بے حس رویے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو تختے دار پر چڑھانے کی فاشزم طرز حکمرانی کا مظہر ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند ایسے دکھ کے وقت میں مرنے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے اور انصاف دلانے کی جنگ میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے اتر پردیش حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ راج دھرم پر عمل پیرا ہو اور بھید بھاؤ کے بغیر ان لوگوں کو سزا دلائی جائے جو ایسے گھنونے اور انسانیت سوز عمل میں ملوث ہیں۔ ترنمول کانگریس کی سربراہ و مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے الزام عائد کیا کہ اتر پردیش میں رام راج کی بجائے جان سے مار ڈالنے کا راج چل رہا ہے۔ انہوں نے لکھیم پور واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ لکھیم پور میں زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کے دوران تشدد اور پولیس فائرنگ میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ افشا شدہ مالیاتی دستاویزات میں، جنہیں پینڈورا پیپرز کا نام دیا گیا ہے، کئی ہندوستانی تاجرین، مشہور شخصیات اور سیاستدانوں کے ناموں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اس فہرست میں 380 ہندوستانی ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر لاکھوں ڈالرز کے اثاثے چھپائے ہیں اور اس کے لیے بیرونی ممالک کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی ہے۔ انٹرنیشنل کنزورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے یہ رپورٹ جاری کی ہے، جو تقریباً
11.9 मिलियन खुफिया फाइल्स पर मुश्तमिल है। 150 मीडिया इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 600 सहाफ़ियों ने 2 साल की मेहनत के बाद ये दस्तावेज़ात हासिल किए हैं। इस इदारे और हिंदुस्तान और इसके पार्टनर्स इंडियन एक्सप्रेस ने मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, हीरो के ताजिर नीरव मोदी की बहन और बायोकॉन कंपनी की प्रोमोटर किरण मुजम्मेदार शाह के शौहर का नाम लिया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक सचिन तेंदुलकर और इनके अरकान खानदान ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स में एक बैरूनी कंपनी के मालिक हैं। ताहम सचिन तेंदुलकर के नुमाइंदे ने बताया कि ये लेन देन पूरी तरह से जायज़ है और उन्होंने इनकम टैक्स अहदेदारों को भी मुतला किया है। बिजनेसमैन अनिल अंबानी ने, जिन्होंने हाल ही में बरतानिया की एक अदालत में दिवालिया होने की दरख्वास्त दाखिल की है, इस दस्तावेज़ात के मुताबिक बैरूनी कंपनियों में सरमायाकारी की है। कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गुजरात शाख ने अहमदाबाद के जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश करते हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है, जिन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने इंसदाद तब्दीली मजहब कानून के तहत गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ मुबल्लिग़ व आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी को उत्तर प्रदेश ATS ने 22 सितंबर को मीरठ में गिरफ्तार किया था और गैर कानूनी तब्दीली मजहब रैकेट में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को मुखातिब करते हुए याददाश्त में गुजरात शाख के सदर साबिर काबुलीवाला ने कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है जो किसी एक या मखसूस मजहब पर एतकाद नहीं रखता। दस्तूर-ए-हिंद आर्टिकल 25 और 26 के तहत अपने शहरियों को अपनी पसंद के मजहब पर अमल और तबलीग की इजाज़त देता है। पुलिस ने इसे अब तक का सबसे बड़ा तब्दीली मजहब रैकेट करार दिया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने ऐलान किया है कि हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज लखीमपुर खेड़ी तशद्दुद की तहकीकात करेंगे और इस वाक़े में हलाक 4 किसानों के ख़ानदानों को 45 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हुकूमत इस तशद्दुद में ज़ख्मी अफराद को 10 लाख रुपए भी देगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अविनाश अवस्थी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ एक मुआहदा हुआ है। हुकूमत तशद्दुद में हलाक 4 किसानों के अरकान ख़ानदान को 45 लाख रुपए देगी। इसके अलावा इनके ख़ानदानों के एक रुकन को मुकामी सतह पर सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। JNU के तालिब इल्म शर्जील इमाम ने, जिन्हें CA और NRC के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुबैना इश्तिआल-अंगेज़ तकारीर के लिए गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली की एक अदालत को बताया कि वो दहशतगर्द नहीं हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई एक कानूनी हुकूमत से ज़्यादा शाही हुकूमत की मनमानी के मुमासिल हैं। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत शर्जील इमाम के खिलाफ एक केस की समाअत कर रहे हैं। वो जनवरी 2020 से अदालती तहवील में हैं। इन्हें सख्त इंसदाद दहशतगर्दी कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पीर को जमानत देने से इनकार कर दिया गया, जिन्हें मुंबई के करीब क्रूज शिप में ड्रग्स पार्टी के सनसनीखेज केस में गिरफ्तार किया गया। 23 साल आर्यन को मुंबई की एक अदालत ने जुमेरात तक के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तहवील में दे दिया। जज ने आर्यन खान और 7 दूसरों की तहवील में तौसीक करते हुए कहा कि तहकीकात काफ़ी अहमियत की हामिल है। इससे मुलजिमीन और तफ्तीश कुनंदों दोनों को फ़ायदा होता है। जब जज फैसला सुना रहे थे, आर्यन खान पुरसुकून थे, जबकि इनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और दूसरे रो पड़े। समंदरी तूफान शाहीन ओमान और ईरान के साहिल से टकरा गया, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद हलाक हो गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ओमान में आए समंदरी तूफान शाहीन से साहली इलाकों में तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान ज़मीन खिसकने से 2 पाकिस्तानी समेत 3 मजदूर मलबे तले दब कर जाँ बहक हो गए। तेज़ हवाओं और मौसम की खराबी के बाद परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई, जबकि मरकज़ी शाहराहें ज़ेर-ए-आब आने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ओमान में हिफाजती तदाबीर के तहत 2 रोज़ की आम तातील का भी ऐलान किया गया। समंदरी तूफान की तबाहकारियों को देखते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब ने भी हिफाजती इक़दामात का आगाज़ कर दिया है और दोनों ममालिक ने साहली इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। स्वीडन में तौहीन आमेज़ खाके बनाने वाला कार्टूनिस्ट विक्स कार हादसे में झुलस कर हलाक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 75 साला कार्टूनिस्ट और 2 पुलिस अफसरान गुज़िश्ता रोज़ हौलनाक कार हादसे का शिकार हुए। गाड़ी और ट्रक के तसादुम के नतीजे में लॉर्ड्स विक्स और इसकी हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकार मौके पर ही हलाक हो गए। मुकामी पुलिस ने अपने बयान में कहा कि यह अभी तक वाज़ेह नहीं कि कार और ट्रक की टक्कर कैसे हुई, ताहम इब्तदाई तौर पर वाक़े में किसी के मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि रियासत में डेंगू का इलाज आरोग्यश्री स्कीम के तहत किया जा रहा है और इस सिलसिले में खानगी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि डेंगू के मरीजों को आरोग्यश्री के तहत इलाज से इनकार और ज़ायद फीस वसूल करने वाले खानगी हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। असेंबली में वक्फे सवालात में वजीर फाइनेंस ने नीलोफर और फीवर हॉस्पिटल में इलाज की सहूलतों में बेहतरी के लिए अहदेदारों को फौरी दौरे की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ अंदरून 2 दिन फीवर हॉस्पिटल और नीलोफर हॉस्पिटल का दौरा करते हुए वबाई अमराज से निमटने के लिए इंतजामात का जायजा लेंगे। हरीश राव ने कहा कि असेंबली इजलास के बाद वो खुद भी सरकारी दवाखानों का दौरा करना चाहते हैं। उन्होंने इतराफ़ किया कि जारिया साल डेंगू के केसेस में बतदरीज इजाफा दर्ज किया गया है।
उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस कारकुन अचानक हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर पहुंच गए और धरना मुनज़्ज़म किया। वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ और महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव की क़यादत में कारकुनों ने अचानक बीजेपी ऑफिस पहुंचकर मोदी और योगी हुकूमतों के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस कारकुन बीजेपी दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। अचानक एहतजाज से परेशान पुलिस मुलाजमीन को सूरत हाल पर काबू पाने में दुश्वारी पेश आई। जायद पुलिस फोर्स को तलब करके कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लेकर बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। कांग्रेस एहतजाज के वक्त बीजेपी दफ्तर के रूबरू इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई, जब बीजेपी कारकुन भी जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने बीजेपी दफ्तर के अतराफ सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अक़लियतों की तालीमी और मुआशी तरक्की के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवरी को यकीनी बनाया जाए। अक़लियती बहबूद पर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए, जिसके नतीजे में तालीम और रोज़गार में लाखों अक़लियती उम्मीदवारों को फ़ायदा हुआ है। केसीआर ने तेलंगाना तहरीक के दौरान 12% तहफ़्फ़ुज़ात का जो वादा किया था, इस पर अमल आवरी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियतें दीगर तबक़ात से ज़्यादा पसमानदा हैं। कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुसलमानों को सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया जैसे अहम ओहदों पर फायज किया गया था। उन्होंने अक़ामती स्कूलों में सहूलतों की कमी का हवाला दिया और कहा कि ज़ाती इमारतों के लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने केजी ता पीजी मुफ्त तालीम के वादे की तकमील का मुतालबा किया। तेलंगाना हुकूमत ने आउटर रिंग रोड के हुदूद में झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी सेल के क़याम का फैसला किया है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म की निगरानी में यह खुसूसी सेल काम करेगा। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने आज GORT 741 जारी किया। GO में कहा गया कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 185 झील और तालाब हैं। नाजायज़ कब्ज़ों के नतीजे में तालाब का रुक़बा कम हो चुका है। हुकूमत ने झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे मनसूबे के तहत खुसूसी सेल के क़याम का फैसला किया है और खुसूसी सेल को रहनुमायाना ख़ुतूत जारी किए जाएंगे, जिसके तहत तहफ़्फ़ुज़ के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सयाहत और दीगर शोबेजात के सिलसिले में तेलंगाना से मरकज़ के मौजूदा रवैये पर तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद तेलंगाना की अजीम सक़ाफ़त, तारीख़, रिवायत और फ़न को तस्लीम करने के सिलसिले में मरकज़ से कोई रद्दअमल हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत में 6 फ़िज़ाई पट्टियों की मंजूरी की तजवीज़ पर मरकज़ी हुकूमत ने 6.5 साल तक ताख़ीर की है। हालांकि रियासती हुकूमत ने अपने फ़र्ज़ के ज़रिए इनकी तैयारी की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत में बेशतर फ़नकार और सरकर्दा शख्सियात हैं, ताहम जब हुकूमत पद्मा अवार्ड्स के लिए इनके नामों की तजवीज़ पेश करती है तो इनके नामों पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से गौर नहीं किया जाता है। केसीआर ने कहा, मैंने शख्सी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से पूछा कि हम नाम भेजें या ना भेजें, जिस पर इन दोनों ने इस सिलसिले में मुनासिब क़दम का वादा किया। असेंबली में वक़फ़े सवालात के दौरान चंद्रशेखर राव ने कहा कि तमाम अज़ला के अरकान असेंबली पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाएगी ताकि रियासत के तारीख़ी मुक़ामात, ख़िलों, तफरीही मुक़ामात की शिनाख्त और इनकी तरक्की के इक़दाम किए जाएँ। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने कहा है कि इनकी हुकूमत पुराना शहर, नया शहर और हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई तफरीक़ या इम्तियाज़ नहीं करती है, बल्कि तमाम इलाक़ों और मज़ाहिब की मसावी तरक्की के इक़दाम करती है। और इसी नज़रिए के तहत चंद्रशेखर राव हुकूमत ने गुज़श्ता 7 सालों से पुराने शहर की तरक्की के मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। रियासती असम्बली में हैदराबाद के पुराने शहर और अक़लियतों की तरक्की से मुतालिक मुनक़िदा मुख्तसर मुबाहस का जवाब देते हुए KT रामाराव ने कहा कि TRS हुकूमत ने पुराने शहर की तरक्की के लिए अब तक 14,887 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिनमें सिर्फ महकुमा बल्दी नज़्म के 13,693 करोड़ 67 लाख रुपए शामिल हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने वाज़ेह किया कि इनकी हुकूमत बदले की सियासत पर यकीन नहीं रखती, बल्कि बदलाव की सियासत पर यकीन रखती है। उन्होंने रियासती असम्बली में BJP के रुकन राजा सिंह की जानिब से इनके हल्के को तरक्याती कामों में नज़रअंदाज कर देने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत अपोजिशन जमातों के हल्कों में भी तरक्याती कामों को अंजाम दे रही है, किसी भी रुकन के साथ इम्तियाज़ नहीं बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर तारक रामाराव ने राजा सिंह से कहा कि उन्होंने मखदूम मुहिउद्दीन के शेर को सुना होगा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। इस शेर को पढ़ते हुए वज़ीर KTR ने कहा कि हुकूमत मखदूम मुहिउद्दीन के इसी शेर के मुताबिक अपोजिशन को साथ लेकर चल रही है, किसी के साथ कोई इम्तियाज़ नहीं किया जा रहा है।